نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ الو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کی بستیوں میں رہتے تھے، بعد میں ویرانوں میں کیوں رہنے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الو بھی اللہ کی بے شمار مخلوق میں سے ایک ہے جو اپنی وضع قطع، اپنی سج دھج، اپنی دیو ملائی، مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نحوست کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ اسی لیے کسی شخص کو غلطی کرنے پر اسے الو کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کسی کو عقل کا کمتر یا بیوقوف کہنے کے لیے اس پرندے کا نام ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ حالانکہ انسانی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ بڑی آنکھوں والا اور بڑے سر والا انسان ذہین سمجھا جاتا ہے، لیکن الو کی آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور سر بھی بڑا ہوتا ہے، پھر بھی بیوقوف لوگوں کی مثال اکثر الو سے ہی دی جاتی ہے۔ عام طور سے عوام الو کو منحوس پرندہ مانتے ہیں، لیکن انگریزی ادب کی بچوں کی کہانیوں جیسے ہیری پوٹر میں الو کو اعلیٰ خوبیوں والا اور عقل مند پرندہ مانا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں الو کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی پر بیٹھ کر اپنے بھکتوں کے یہاں جاتی ہیں۔ دنیا میں کل 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں ہی بانٹا گیا ہے۔ بارن الو اس کا سائنسی نام ہے۔ یہ اوسط جسامت کا اور ہلکے سرمئی رنگ کا پرندہ ہوتا ہے۔ جسم کا اوپری حصہ لالی لیے ہوئے اور پنکھوں پر سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے پروں اور سر پر بھورے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ چہرے کی بناوٹ گلائی لیے ہوئے دل کی شکل کی ہوتی ہے جو بھورے رنگ کے بارڈر سے گھری ہوتی ہے۔ بارڈر سے گھرا ہوا حصہ سفید ہوتا ہے۔ اس کے پیروں کی رنگت پیلا پن لیے ہوئے یا بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ مادہ کے جسم پر دھبے کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ پیر قدرے بڑے اور پروں سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ شکاری پرندہ ہونے کی وجہ سے الو کے پنجے اور ناخن بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ پروں کا پھیلاؤ 3.5 فٹ تک ہوا کرتا ہے۔ ان کا وزن 250 گرام سے لے کر 480 گرام تک ہوتا ہے۔ مادہ نر کی بنسبت کچھ زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس طرح کے الو 16 قسم کے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے ٹرو الو۔ بارن الوؤں سے یہ کافی مختلف ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ 190 خاندانوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن 23 خاندان نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ مختلف جسامت والے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے بونے الو سے لے کر بھاری بھرکم اور مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے الوؤں کا چہرہ گول و بڑا ہوتا ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے۔ الو کے پر دھبے دار ہونے کی وجہ سے بڑے شکاری پرندوں باز وغیرہ کی نظر ان پر جلدی نہیں پڑتی۔ الو اپنے سے چھوٹوں کا شکار کرتا ہے اور خود کو شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ چوہے، گلہریاں، خرگوش، چڑیا، کیڑے مکوڑے وغیرہ کسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور سے ان کی عمر 1-2 سال ہی ہوتی ہے۔ الو چھوٹے شکار کو پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکڑے کر کے نگلتا ہے۔ نا ہضم ہونے والی اشیاء جیسے ہڈیاں، بال اور پر وغیرہ پورے کا پورا ملغوبہ بیلن نما ٹھوس کی شکل میں اگل دیتا ہے۔ عام طور سے الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کے کھو میں بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈر یا ویران عمارتوں، کنووں میں بھی گھونسلہ بناتے ہیں۔ الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے، الوؤں کی طرح دیدے نچا رہے ہو، جبکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اور اسی لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز بالکل نہیں ہوتی۔ یہ آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 15 سے 20 ہزار سال پہلے الوؤں کا رشتہ انسانوں کے ساتھ قائم ہو چکا تھا، جس کی شہادت فرانس کے غاروں میں کنندہ فنکاری میں پائی جاتی ہے۔ ہندو کی مذہبی کتاب بالمیک رامائن میں الو کو بے وقوف کے بجائے بہت ہی دانا پرندہ کہا گیا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ رشی منیوں نے بہت سوچ سمجھ کر الو کو لکشمی کی سواری بنایا ہے۔ الوؤں کی قوت سماعت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے گچھے میں یہ چھپے ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کی ہلکی سی آواز سے سمت کا اندازہ لگا کر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان کے
पंजे खास किस्म के होते हैं जिसमें 4 नुकीली उंगलियां 2 आगे और 2 पीछे की जानिब होती हैं। जरूरत पड़ने पर पीछे वाली उंगलियों में से एक को घुमाकर आगे की जानिब किया जा सकता है। इनकी चोंच दीगर गोश्त खौर परिंदों की तरह नोकीली और टेढ़ी होती है। परों से ढकी होने की वजह से छोटी दिखाई देती हैं। उल्लू से ताल्लुक रखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके झुंड को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुताल्लिक कुछ दिलचस्प अकीदे। बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर खानदान में किसी के मौत यकीनी समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज को बुरी अलामत मानी जाती है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को तो मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को साथ माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों में खुशहाली लाने के लिए जादू मंतर करने, सेहतयाबी के लिए उल्लुओं की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में लोगों का अकीदा है कि उल्लू की आंख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखून बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नजर नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तावीज में भरकर गले में बांधने से किसी तरह का डर नहीं लगता। उल्लू की पूजा दिवाली में करने से लक्ष्मी जी मेहरबान होती हैं। बेहद दौलत बरसती है। उल्लू के पर को हिसाब किताब के बही खाते में रखने से माल दौलत में बरकत होती है। अब इनको कौन समझाए कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। उल्लू एक बहुत पुरस्कार परिंदा है। आप में से ज्यादातर लोगों ने असलियत में उल्लू को कभी नहीं देखा होगा, या तो उल्लू को टेलीविजन या फिर इंटरनेट पर ही देखा होगा, क्योंकि असली जिंदगी में उल्लू बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उल्लू आम नजर आया करते थे। ये घरों और मोहल्लों में रहा करते थे। जब कोई खाना खाया करता था तो उल्लू उसके पास आकर बैठ जाया करता था, जिसके बाद वो शख्स उल्लू को खाना और पानी डाल दिया करता था और खाना वगैरह खाकर उल्लू उड़ जाया करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उल्लू ने इंसानों में रहना ही छोड़ दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उल्लू से पूरा एक मुकालमा किया था और इस मुकालमे के बाद उल्लू को एक बहुत खतरनाक खिताब भी दिया था। उल्लू के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर अचानक से शाम के वक्त या रात के वक्त किसी शख्स को उल्लू नजर आ जाता है तो उस शख्स की बहुत जल्द मौत वाक़ई होने वाली है। इसी तरह अगर शाम या रात के वक्त किसी घर पर उल्लू आकर बैठ जाता है तो समझे कि उस घर की तबाही और बर्बादी होने वाली है और बहुत जल्द वहाँ वीरानी छा जाएगी। इस वीडियो में आपको न सिर्फ इन तमाम बातों की असलियत के बारे में बताएंगे कि ऐसा असल में क्यों है, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि उल्लू इतना पुरस्कार परिंदा क्यों है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्लू के बारे में क्या इरशाद फरमाया। उल्लू एक शिकारी परिंदा है। ये ना सिर्फ दूसरे परिंदों बल्कि छोटे जानवर जैसे कि बिल्ली, सांप और चूहे का भी शिकार करता है। हत्ता कि ये बड़ी बिल्लियों तक को उठा कर ले जाने की सलाहियत रखता है और बहुत बेदर्दी से उनको चीर फाड़ करके उनको खा लेता है। क्योंकि ये शिकारी परिंदा है इसलिए उल्लू खाने में हराम है। उल्लू की बुनियादी तौर पर 2 इकसाम होती हैं, एक छोटा उल्लू और एक बड़ा उल्लू। छोटे उल्लू के सर पर कुछ नहीं होता, जबकि बड़े उल्लू के सर पर होते हैं जो कि सींग जैसे नजर आते हैं। छोटे उल्लू का वजन तकरीबन 500 ग्राम जबकि बड़ा 3 या 3.5 किलो तक भी हो सकता है। आप में से ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि सबसे खतरनाक शिकारी परिंदा उकाब यानी शाहीन होता है, लेकिन असलियत ये है कि उल्लू शाहीन से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी परिंदा है। दोनों में फर्क ये है कि उकाब दिन के वक्त शिकार करता है जबकि उल्लू रात के वक्त शिकार करता है। जब उल्लू परवास करता है तो उसके परों से जरा सी भी आवाज पैदा नहीं होती और ये चीज उल्लू को बेहद खतरनाक शिकारी बना देती है, क्योंकि इसके शिकार को पता ही नहीं चल पाता कि उल्लू उसकी तरफ बढ़ रहा है। उल्लू की चोंच बहुत छोटी सी नजर आती है, लेकिन असल में उल्लू की चोंच परों में छुपी होती है। उल्लू के पास एक बहुत बड़ी और मजबूत चोंच होती है जो कि बेहद नुकीली होती है। उल्लू आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर खासकर कोई बड़ा उल्लू इंसान को खतरा मान बैठे तो ना सिर्फ उल्लू इंसान पर हमला करता है बल्कि ये हमला बेहद खतरनाक होता है। उल्लू की जानिब से आमतौर पर इंसान की आंखों और सर पर हमला किया जाता है और ये बेहद खतरनाक होता है। कुछ हमलों के नतीजे में तो कुछ इंसानों की मौत तक वाक़ई हो चुकी है। जैसे इंसान अपनी आंख को इधर उधर घुमाकर इधर उधर देख सकता है, उल्लू की आंखें फिक्स होती हैं
उल्लू अपनी आंखों को घुमा नहीं सकते, लेकिन उल्लू की गर्दन 360 डिग्री घूम सकती है। उल्लू अपनी गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे किसी भी जानिब घुमा सकते हैं। उकाब जब भी अपने शिकार को पकड़ता है, सबसे पहले उकाब की शाहरग और उसको मार देता है, इसके बाद उसे खाना शुरू करता है। लेकिन उल्लू जब भी कोई शिकार पकड़ता है तो उल्लू उसकी शाहरग दबाकर उसकी जान नहीं लेता, बल्कि जिंदा उसको खाता है। और यही वजह होती है कि उल्लू का शिकार तड़प तड़प कर मरता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद उल्लू ने इंसानों के दरमियान रहना क्यों छोड़ दिया और वीरानों में जाकर क्यों बस गए? आपको इसका जवाब देते हैं, लेकिन सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से ये ताकत अता फरमाई गई थी कि आप अलैहिस्सलाम किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बात कर सकते थे। एक दफा एक उल्लू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है और आपको सलाम अर्ज करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू के सलाम का जवाब देते हैं, जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से उल्लू से ये सवाल पूछा जाता है कि तुम खेत में पैदा होने वाली चीजों को क्यों नहीं खाते? जिसके जवाब में उल्लू कहता है कि मैं अनाज को इसलिए नहीं खाता कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जन्नत से इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसीलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से ये पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते? जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है क्योंकि ये वही पानी है जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से सवाल करते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है क्योंकि दिन के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से एक और सवाल किया जाता है कि जब तुम वीराने में बैठे होते हो तो अकेले में क्या बढ़ाते हो? जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है कि जब भी मैं वीराने में बैठा होता हूँ तो मैं ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो तमाम लोग जो इस जगह बसा करते थे और बहुत ऐशो इश्रत की जिंदगी बसर किया करते थे। उल्लू के साथ मकालमे के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उल्लू के बारे में ये कहना था कि उल्लू इंसानों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत और शफकत नहीं देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे। ये इंसानों के घरों में घोंसले बनाया करते थे और इंसानों के घरों और मोहल्लों में नजर आया करते थे और इंसानों के साथ रहते थे। जब भी कोई इंसान खाना वगैरह खा रहा होता था तो उल्लू उसके पास आकर बैठ जाया करते थे, जिसके बाद वो इंसान उल्लू को थोड़ा खाना फेंक दिया करता था, जिसको खाकर उल्लू उड़ जाया करते थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस चीज की तस्दीक करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक उल्लू इंसानों में रहा करते थे, लेकिन इसके बाद हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन आता है। 10वीं मुहर्रम वाले दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया जाता है तो आसमान अपना रंग बदल लेता है और लाली माइल यानी खून के रंग का हो जाता है। हर जानदार फिर चाहे वो हवा में उड़ता या पानी में रहता है या जमीन पर रेंगता है दुखी नजर आता है, लेकिन तमाम जानवरों में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का सबसे ज्यादा दुख उल्लू को होता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये कहना था कि तमाम जानवरों में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का सबसे ज्यादा दुख उल्लू को ही हुआ था। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कहना था कि जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उल्लू ने इंसानों पर भरोसा और यकीन करना छोड़ दिया और उल्लू ने इंसानों की बस्तियों में रहना छोड़ दिया और वीराने में जाकर बस गया। जाने से पहले उल्लू का ये कहना था कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का ये हाल कर सकते हो तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? उल्लू ने ये भी कहा था कि तुम बहुत बुरी उम्मत हो, तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया और वो दिन है और आज का दिन है उल्लू इंसानों की बस्तियों में नहीं रहता। उल्लू की जानिब से सुनसानी और वीरानी में अपने घोंसले बनाए जाते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही कि उल्लू एक मनहूस परिंदा है या अगर किसी शख्स को शाम के वक्त उल्लू नजर आ जाए तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, या अगर आपके घर पे उल्लू आकर बैठ जाए तो समझे कि आपके घर की बर्बादी होने वाली है, ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। उल्लू के बारे में ये तमाम बातें आज से नहीं बल्कि सदियों से की जा रही हैं और खासकर अरब लोग उल्लू को बेहद मनहूस मानते थे।
عرب لوگوں کا ماننا تھا کہ الو اصل میں کوئی پرندہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ ایک بد روح ہے۔ جب بھی کوئی شخص بے موت مارا جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی میں سے الو نکلتا ہے اور یہ اپنے قاتل کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، اور جب تک یہ اپنے قاتل سے بدلہ نہیں لے لیتا یہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔